Hello, students. Good morning, all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we have completed the revision of Unit 5 Life Simple Comedies, Section 1 Bideshia Babu, right? And we have also gone through the worksheet, that is worksheet 5. And today we would be moving ahead with our next unit, that is the unknown. And today we would be going through the summary of section 1, that is what Lucy found there. As you know, we have already studied this chapter, so I hope that you remember the story, what it is all about, right? So we'll just revise it in short, as I won't be able to carry out the explanation line by line. We have already done that. If you still have any queries, you can go through that video again. Today we would be just going through the brief explanation of this chapter. Now, this story was written by C.S. Lewis and it is an extract, that means it's just one part taken from this novel, The Lion, Witch and the Wardrobe. Now, this novel is also turned into a movie called The Chronicles of Narnia, which you can see if you want to. And you would be able to understand very clearly this portion which has been taken over here. Now, the Lucy, who is a girl over here, she has come from another world where she meets a strange creature who calls himself a fawn. Well, and who is fawn? A fawn is a creature whose half body is that of a human being and half body is that of an animal. Okay, and he is quite pleasant and he is very kind when he talks with when he talks with Lucy, and there is a talk and a conversation between two of them, that is the fawn and the Lucy, in this chapter. So let's see what the story is all about. The story starts with the girl who suddenly gets into the another world through a wardrobe. Actually, Lucy and her siblings, that means uske jo bhai behan the, they were playing hide and seek, and the girl came and hid under the inside the wardrobe. And when she entered the wardrobe, she reached into the another world, and that world was called Narnia. ठीक है, वो जो जगह जहाँ पे वो एंटर होती है, वो जगह कौन सी होती है? नार्निया होती है. ठीक है, अभी वहाँ पे जैसे ही वो एंटर होती है, वहाँ पे उसकी वो वहाँ पे मिलती है फॉन से, जिसका नाम मिस्टर टमनस है. राइट, सो मिस्टर टमनस जो है वो उसको ग्रीट करता है. ही सेज, गुडनेस ग्रेशियस मी, exclaimed the fawn when he saw Lucy. He was quite surprised at seeing that small girl. So Lucy also greeted good evening, right? But fawn was quite busy picking up the parcels which he had already had it in his hand. और जैसे ही उसने Lucy को देखा, वो सारे packings और parcels उसके हाथ से गिर गए. So he was quite busy picking it up. But as soon as he picked it up, he replied. He said good evening, and he was quite surprised क्योंकि उसने पहले कभी इंसान नहीं देखा था. So he just went on and asked कि are you the daughter of Eve? So Lucy is quite small, she is just 8-year-old girl. तो उसको समझ में नहीं आया कि what is the fawn trying to ask, right? तो उसको बोलती है कि I am not the daughter of Eve. मतलब उसको लगा कि उसकी मम्मी का नाम ईव है, राइट? तो वो तो नहीं था. And he said, Lucy said that her name is Lucy, but fawn said that I haven't seen any humans before, and that's why I am quite puzzled and I am asking you such questions, right? And then he goes on and asks कि तुम कहाँ से आए हो, right? जो मिस्टर टमनस है उसने उसको पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड यू कम. सो ल्यूसी सेड दैट आई केम फ्रॉम अ वार्डरोब, एंड दे वर प्लीज्ड टू मीट ईच अदर. और फिर ल्यूसी उसको पूछती है कि विच प्लेस इज़ दिस.
सो मिस्टर टमनस उसको एक्सप्लेन करता है कि दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ नार्निया वेर यू आर स्टैंडिंग, मतलब वो जहाँ पे आई थी, जब जहाँ पे एंटर हुई थी फॉरेस्ट में, राइट, वो लैम्प पोस्ट था वहाँ पे, वहाँ से लेके केयर पैरावेल तक जो ग्रेट कैसल है वहाँ पे केयर पैरावेल में, वो पूरी जगह को नार्निया कहा जाता है. ओके, एंड ही इज़ लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू कम. So she said that I came from wardrobe which was there in my spare room. Now Tumnus doesn't have any idea what she's talking about, right? तो वो ऐसे ही बोलता है कि आई एम नॉट गुड एट जोग्राफी सो आई डोंट नो विच प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन सी कंट्री है मुझे नहीं मालूम है. तो ल्यूसी उसको बताती है कि इट्स नॉट द नेम ऑफ द कंट्री, इट्स अ प्लेस जहाँ पे एक मतलब क्लोजेट जैसा है, कबर्ड है, वार्डरोब मतलब कबर्ड होता है, ठीक है, वुडन वार्डरोब, वहाँ से मैं आई हूँ. और मिस्टर टमनस को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने पहले कभी ह्यूमन बींग देखा नहीं है या फिर ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो नहीं देखा है. एंड ल्यूसी इज़ ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज बिकॉज द प्लेस वेयर शी वॉज देयर, राइट, वहाँ पे समर्स था, मतलब वो जहाँ से आई है वहाँ पे समर्स था, और यहाँ जहाँ पे वो आई है अभी वहाँ पे क्या है, विंटर्स है, राइट. द प्लेस वेयर शी इज़ मतलब नार्निया जो जगह है वहाँ पे विंटर है. सो मिस्टर टमनस गोज़ ऑन एंड से कि येस, नार्निया में तो विंटर ही चल रहा है एंड इट हैज़ बीन देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो ही सजेस्ट कि तुम मेरे साथ घर चलो मेरे, विल बोथ गो एंड हैव अ टी बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, और हम दोनों को ठंडी लग सकती है. सो ये ल्यूसी जो है शी वॉज क्वाइट हेजिटेंट अबाउट गोइंग अलॉन्ग विथ मिस्टर टमनस, बट आफ्टर सम टाइम शी डिसाइड्स टू गो अलॉन्ग विथ हिम. ओके, वो उसको इनवाइट करता है खाने के लिए और चाय के लिए. सो दे गो अलॉन्ग और वो लोग जाते हैं मिस्टर टमनस के घर. अभी मिस्टर टमनस का घर कौन सा है, इट वॉज अ कोजी कीव जैसा जो था वहाँ पे उसका घर था. ही यूज टू लिव ओवर देयर. और यहाँ पे फिर उसकी जगह का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि उनका जो घर था वो रॉक्स के पीछे हिड था. देयर वर रॉक्स लाइंग ऑल ओवर, और उसको हटा के मिस्टर टमनस ने अंदर जाने के लिए बोला, राइट. एंड एज दे वेंट इनसाइड इट वॉज क्वाइट वार्म, क्योंकि वहाँ पे जो फायर थी, फायर प्लेस था, वहाँ पे फायर चल रही थी. एंड जो घर था वो काफ़ी कोजी था, हर जगह पे रग्स लगा हुआ था, राइट, और फिर टेबल चेयर अरेंज किए हुए थे. इट वॉज क्वाइट नाइस प्लेस. और जो फ़ोन था उसने उसको बोला, मिस्टर टमनस ने बोला कि यू जस्ट मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आई विल गो एंड प्रिपेयर द टी. एंड बाय द टाइम जब मिस्टर टमनस टी बनाने गए, एट दैट टाइम ल्यूसी सेटल्ड ओवर देयर एंड शी नोटिस्ड सम बुक्स विच वर केप्ट ऑन द शेल्फ. ओके, और फिर उसने वो बुक्स ली और पढ़ना चालू किया. एंड दे बोथ ऑफ देम एन्जॉयड द सार्डीन्स एंड द केक और टोस्ट और जो भी सारी चीज़ें मिस्टर टमनस ने उसके लिए प्रेजेंट किया था वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से बैठ के खाई. और जो मिस्टर टमनस है उसने उसको काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई जो वहाँ के रिलेटेड थी, मतलब नार्निया जो जगह है वहाँ के रिलेटेड थी, राइट. सो दे सेड सार्डीन्स ऑन टोस्ट एंड केक, एंड मिस्टर टमनस जो थे वो उसको काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई about nymphs and dryads and fauns, as well as about the milk white stag. Stag means it's a kind of animal which resembles to deer. ठीक है, डियर जैसा दिखता है. और उसने ये भी बताया कि अगर हम ऐसे वाइट मिल्क स्टैग मतलब मिल्क जैसा वाइट जो होता है वैसे अगर स्टैग को पकड़ते हैं देन ही ऑल्सो ग्रांट्स अस विशेस. एंड ही गोज ऑन एंड सेज कि ये जो निम्स और ड्रायड्स है विच आर कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिट्स, राइट, एंजल्स जैसे, मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है उसको निम्स और ड्रायड्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी. ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब मिस्टर टमनस के जो एंसेस्टर्स थे वो उनके साथ खेलते थे. दे यूज टू डांस एंड दे यूज टू पार्टी होल नाइट एंड दे यूज टू फीस्ट अलॉन्ग, राइट. एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रेड ड्वार्फ्स. फिर वहाँ पर जो उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस थे उसके बारे में बताया, जैसे कि सिलेनस है who is considered to be a companion of God. Then they have also talked about Bacchus who is a god in ancient Roman mythology, right. उसके बारे में भी वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है मिस्टर टमनस,
राइट. एंड आफ्टर दोज टॉक्स जो मिस्टर टमनस है उन्होंने फ्लूट प्ले किया. एंड वाइल लिसनिंग टू दैट फ्लूट ल्यूसी फेल्ट क्वाइट ड्राउजी एंड शी फेल्ट अस्लीप. ठीक है, और उसके 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए. बट शी रियलाइज्ड इट क्वाइट लेट कि शी हैज़ बीन देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड शी एक्सक्लेम्स दैट शी मस्ट गो. सो मिस्टर टमनस जो है वो सडनली रोना चालू कर देते हैं. ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सॉबिंग हार्डर. एंड जब भी मतलब जो ल्यूसी जो है वो जब भी उसको कंसोल करने का ट्राई करती है, दैट मीन्स वेन एवर शी ट्राइज टू स्टॉप हिम फ्रॉम क्राइंग, ही क्राइज मोर. ही क्राइज सो मच कि ल्यूसी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे मतलब ऐसे गीला गीला पूरा हो गया, बिकॉज ही वॉज क्राइंग दैट मच एंड ही वॉज नॉट रेडी टू स्पीक कि what is the problem. So Lucy was little bit angry over there कि why do you keep on crying like a small baby? You need to tell me that what has happened, right? What happened to you? Why are you crying so much? But instead of saying anything, Mr. Tumnus जो थे वो रोना ही उन्होंने कंटिन्यू किया, right? Lucy also offered the handkerchief. वो हैंकरचिफ भी यूज़ कर रहा था, आंसू पोंछ रहा है, गीला हो गया पूरा, फिर भी वो रोना तो बंद नहीं ही कर रहा है. So Lucy started shouting at him that you need to stop crying right now because you are such a big fawn and why do you cry so much. तो मिस्टर टमनस ने उसको बताया कि because I am a bad fawn that's why I am crying. So Lucy को उस वक्त तो पता ही नहीं था कि मिस्टर टमनस ने उसको क्यों इनवाइट किया है या फिर why is he calling himself bad fawn, right? So Lucy says कि मैं तो कभी किसी और से मिली नहीं हूँ दूसरे फ़ोन से. So I think you are the nicest one. You are so kind and you are so generous. Why are you saying that? So Mr. Tumnus ने कहा कि no, I am a bad fawn and I don't suppose that there is any worse fawn since the beginning of the world. मतलब मेरे से बुरा कोई नहीं है. So Lucy ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया है? What have you done that you consider yourself so bad? So Mr. Tumnus जो है वो बताता है कि मेरे जो फादर है जो पिक्चर के ऊपर थे, मतलब उनका जो फायर प्लेस था वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, उनके फादर का पिक्चर रखा हुआ था. एंड ही सेड दैट माय फादर इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ. लेकिन अगर वो मेरी जगह पर होते तो ऐसा कुछ नहीं करते. अभी ल्यूसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर टमनस क्या कहना चाह रहा है. सो ल्यूसी जस्ट ट्राइज टू आस्क हिम कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट हैव यू डन. सो फोन उसको बताता है कि सी आई वर्क फॉर वाइट विच. वाइट विच कौन है? जो बुरी लेडी है, ठीक है, जिसकी वजह से नार्निया में सिर्फ विंटर ही विंटर है, राइट? उसके लिए मैं काम करता हूँ. आई एम इन पे ऑफ वाइट विच. दैट मीन्स ही वर्क्स फॉर वाइट विच. एंड वो जो विच है शी इज़ अ बैड woman and she doesn't allow anybody to celebrate the Christmas also over here. एंड उसकी वजह से ही पूरी जगह पर विंटर ही विंटर है, हम और कोई सीज़न सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो ल्यूसी सेड दैट तुम ऐसा क्या काम करते हो जिसके लिए वो तुम्हें पे करती है. तो मिस्टर टमनस ने कहा कि आई एम अ किडनैपर फॉर हर. किडनैपर मतलब जो दूसरे लोगों को किडनैप करता है उसके लिए, मतलब उसके कहने पर. नाउ वो बता रहा है उसको कि लुक एट मी डॉटर ऑफ यू. Would you believe that I am a sort of fawn to meet a poor innocent child in the wood, one that has never done any harm to me, and pretend to be friendly and invite it to my home, to my cave, all for the sake of lulling it asleep and then handing it over the white witch. So वो डॉटर ऑफ ईव मतलब ल्यूसी से पूछ रहा है कि डू यू थिंक कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि किसी एक छोटी सी बच्ची को जिसको मैं पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, जिसने मुझे कुछ हार्म नहीं किया, उसको मैं अपने घर लेके आऊँ, फ्रेंडली बिहेव करूँ उसके साथ और फिर उसको सुलाने के बाद मैं वाइट विच को हैंड ओवर कर दूँ. सो ल्यूसी जो है वो बोलती है नो आई डोंट थिंक यू कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग. सो फॉन सेड कि नो बट आई हैव डन इट. सो नाउ ल्यूसी वॉज लिटिल बिट अफ्रेड, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो उसने की हुई है. सो वो बोलता है कि आई एम श्योर. और ल्यूसी जो है वो उसको बताती है कि डोंट वरी इफ़ यू हैव डन सच अ थिंग यू डोंट डू इट अगेन, है ना, दूसरी बार मत करना. सो जो मिस्टर टमनस है वो उसको समझाते हैं कि दिस इज़ंट समथिंग दैट आई हैव डन, आई एम डूइंग इट राइट नाउ. मतलब वो ल्यूसी को ही किडनैप कर रहा है.
सो टमनस क्लियर करता है कि यू आर द चाइल्ड, यस यू आर द डॉटर, और मुझे ऐसा ऑर्डर मिला है। वाइट विच जो है उसने उसको क्या ऑर्डर्स दिए हैं कि वेन एवर यू सी एंड अ सन ऑफ एन एडम और अ डॉटर ऑफ ईव, जब भी आपको कोई बच्चा मिलता है राइट वुड्स के अंदर मतलब फॉरेस्ट के अंदर, देन यू जस्ट नीड टू ब्रिंग दैट चाइल्ड टू वाइट विच, ओके। और उसने बताया कि तुम पहली ही हो जिसको मैं मिला हूँ, और तुमको मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट बैड, राइट, एंड आई एम द वन हु प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंडली विथ यू। तुमको टी पे इनवाइट किया मैंने, और तुमको मैंने सुला भी दिया, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड टेल हर कि मेरे पास ये लड़की है, राइट। सो मिस्टर ल्यूसी वॉज लाइक आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू डू दैट, बट शी इज़ नॉट कन्फर्म्ड। वो उसको वापस पूछ रही है कि यू वोंट, विल यू? Indeed, you really must not. So, Tumnus started crying कि no, I am not going to do that because I know कि तुम बहुत अच्छी हो, right? लेकिन अगर मैं उसको नहीं बताऊँगा, what if I don't tell her, अगर मैं उसको नहीं बताऊँ कि मेरे पास तुम आई थी and then I just let you go, then she can do many things with me, जैसे कि उसकी टेल कट ऑफ कर देंगे वो, या फिर उसके जो हॉर्न्स है उसको काट देंगे, उसका जो बियर्ड है उसको भी प्लग्ड आउट मतलब उसको भी काट देंगे, या फिर उसके ऊपर वॉन्ड घुमा के उसको स्टैचू भी बना सकते हैं, या फिर उसके जो हूफ्स थे, हूफ्स मतलब जो कवरिंग जो नॉर्मली हॉर्सेस के पैर पर होता है वैसा वाला जो कवरिंग था उसके पैर का, वो भी वो सॉलिड बना सकती है, या फिर वो उसको स्टोन में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब स्टैचू बना देगी जो सालों साल तक वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो अगर उसको पता चलता है देन शी कैन डू दैट मैनी थिंग्स टू मी। सो ल्यूसी उसको बताती है कि आई नो कि तुम जो बोल रहे हो वो सही होगा, बट आई एम वेरी सॉरी, बट प्लीज़ लेट मी गो होम। सो मिस्टर टमनस सेड कि ऑफकोर्स आई विल, मतलब फ़ोन ने बताया कि आई हैव नॉट मेट एनी ह्यूमन्स बिफोर, सो आई डिडंट नो कि ह्यूमन्स कैसे होते हैं, राइट। अभी तुम मुझे मिली हो तो मुझे मालूम है कि ह्यूमन्स आर गुड, देन वाई आई वुड डू सच थिंग विथ यू एंड यू हैवंट डन एनीथिंग बैड टू मी। सो मिस्टर फॉन क्या करते हैं, मिस्टर टमनस जो है वो उसको वापस वहीं पर लेकर जाते हैं जहाँ से वो आई थी, लैम्प पोस्ट तक उसको पहुँचाते हैं, एंड देन ही आस्क हर दैट आई होप कि तुमको यहाँ से आगे का रास्ता मालूम होगा, सो यू विल go by yourself, right? So here the story ends. This is only a part of that novel जहाँ पर ल्यूसी और मिस्टर टमनस की मीटिंग हुई है. So students, I hope that you are clear with the story. So students, now as we are done with the summary of this chapter, you can go through the question answers of reading 1 and reading 2. And also the vocabulary portion, which are antonyms. I would be moving ahead with the explanation of the grammar portion from your textbook, and accordingly you need to go through the worksheet 6, which is related to the grammar portion of this unit, right? So let's just go through the grammar portion from your textbook, and the first topic in your textbook grammar is active and passive voice. Now if you read the sentences over here, you need to find out कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ए और बी वर्जन्स दिए हुए हैं. See, the first one is Mr. Tumnus put up his umbrella, and the second sentence is the umbrella was put up by Mr. Tumnus. और सेकेंड के अंदर आप देखोगे Lucy saw a patch of light and a patch of light was seen by Lucy. So normally if you see the sentences over here, first A and B and second A and B are almost same. The only thing which has been changed is the doer of the action and the receiver of the action, ठीक है। अगर आप पहला वाला सेंटेंस देखते हो, Mr. Tumnus put up his umbrella. So here students, put up is our verb, right? और किसने put up किया? Mr. Tumnus ने, तो वो है हमारे doer of the action, right? और क्या पुटअप किया उन्होंने? हिज अम्ब्रेला. सो दैट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। मतलब
सब्जेक्ट आता है पहले और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर पहले सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन है, और अगर आप ये सेकेंड सेंटेंस देखोगे, द अम्ब्रेला वॉज पुट अप बाय मिस्टर टमनस, तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है राइट वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, लेकिन वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है राइट। सो ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। अभी जैसे कि यहाँ पे जो कॉलम दिया है उसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट पोजीशन, वर्ब एंड रिसिप्टेंट। अभी सब्जेक्ट पोजीशन पे पहले पे मिस्टर टमनस पुट अप एंड हिज अम्ब्रेला। वर्ब अभी सेकेंड सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या होगा, वॉज पुट अप राइट। अभी सब्जेक्ट की पोजीशन पर कौन है, अम्ब्रेला है, सो वी विल बी राइटिंग द अम्ब्रेला। आई एम नॉट राइटिंग द फुल थिंग, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर टमनस। इन द सेम वे सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड ए में हमारा वर्ब है सॉ, एजेंट की जगह पर है ल्यूसी मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, और एंड पोजीशन मतलब रिसीव कौन कर रहा है, अ पैच ऑफ लाइट, ठीक है। एंड द ऑपोजिट गोज फॉर द लास्ट सेंटेंस, अ पैच ऑफ लाइट इज आवर सब्जेक्ट, दैट मीन्स द इट इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, was seen is our verb, and by Lucy is at end position, that means it has become the object of the sentence right। so जो sentence के अंदर आपका डूअर ऑफ द एक्शन पहले लिखा हुआ होता है मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो वो सेंटेंस होता है हमारा एक्टिव वॉइस राइट। और जिस सेंटेंस के अंदर आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है, इफ़ इट इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन दैट इज़ योर पैसिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव वॉइस के अंदर ये चेंजेस आपको याद रखने हैं कि सब्जेक्ट इज़ मूव टू द एंड और उसके पहले बाय का एडिशन होता है राइट। रिसिप्ट ऑफ द एक्शन दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ मूव्ड एट द सब्जेक्ट पोजीशन, और आपका जो वर्ब रहेगा उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, और साथ में हमें बी वाले वर्ब का एडिशन करना है। बी वाला वर्ब मतलब इज़, एम और आर प्रेजेंट टेंस के लिए, और वॉज और वर पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। सो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस गिवन ओवर हियर बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट देन पैसिव, जैसे कि द बॉय किक्स द बॉल, और पैसिव वॉइस अगर होगा तो पैसिव वॉइस कॉल्स अटेंशन टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन रैदर देन द परफॉर्मर। मतलब पैसिव वॉइस के अंदर ज़्यादा ध्यान किस पर होगा, जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसके ऊपर। डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। जैसे कि द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। नाउ इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंसेस आर जनरली क्लियर। उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा पहले आपका, ठीक है, उसके बाद वर्ब, एंड लास्ट थिंग वुड बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट कौन होगा हमारा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी अवॉइड कॉलिंग द अटेंशन टू द परफॉर्मर ऑफ द सीकर। और नॉर्मली जो हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है उसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन, फिर बी वाला वर्ब लिखेंगे जैसे कि इज, एम, आर या वॉज, वर है अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द पास्ट पार्टिसिपल। जो भी आपका वर्ब होगा वो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही लिखा जाएगा, देन बाय, एंड लास्ट थिंग वुड बी द सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है, सो आई विल जस्ट रीड इट अगेन फॉर यू। Fill in the blanks with passive form of verb to describe the process of making a mummy. It took the Egyptian 70 days to make a well-preserved mummy. First, an incision was made on the left side of the stomach, and all the organs except the heart were removed. Next, all the moisture was taken out of the body. This is called dehydration. Then the body was covered with natron
a salt that worked wonders for this process. Later, the body was embalmed and wrapped in about 150 yards of linen. This took up to 15 days. Good luck charms and jewelry were added. When this was done, the process of mummification would be considered complete. Okay, so this was totally the passive voice and also in past tense. Okay, now let's move on to the another topic, that is present and past perfect continuous tense. Now what is present perfect continuous tense? It shows an ongoing action which started in past and it is still going on at the present. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम कौन सी एक्शन की बात कर रहे होंगे? उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई है, और जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, एट दैट मोमेंट ऑल्सो इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी द फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर, लीला हैज़ बीन रिसर्चिंग द myth of King Tutankhamun's curse for 3 years. Right? So if you see the sentence students, यहाँ पे ये जो वर्ब है हमारा हैज़ बीन रिसर्चिंग, ओके, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और क्यों? क्योंकि लीला जो है शी हैज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द मिथ सिंस 3 years, मतलब 3 साल पहले उसने ये एक्टिविटी या ये एक्शन जो है रिसर्च की, शी स्टार्टेड, राइट. और अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तब भी वो एक्शन कैरीड ऑन है, right? So that is our present perfect continuous tense, and the formation of present perfect continuous tense is has or have. वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर. अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है देन यू हैव टू यूज़ हैज़, और बाकी सबके लिए आप यूज़ करोगे हैव. देन यू हैव टू यूज़ बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, दैट इज़ आईएनजी फॉर्म. Okay, that is the formation of present perfect continuous tense. So when you read a sentence students, you need to find out कि जो एक्शन जिसके बारे में बात हो रही है whether it is going on right now or not. It might have started in past, बहुत पहले या थोड़े टाइम पहले, लेकिन वो एक्शन अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है वो देखना है आपको. ठीक है, इफ़ द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन विच स्टार्टेड इन पास्ट, then it is present perfect continuous tense. And what is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense shows an ongoing action which started before a specific moment in past and was still continuing that till that specific moment. That means कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो पास्ट टेंस है, मतलब जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है पास्ट में, राइट. लेकिन दो एक्शंस की बात होती है वहाँ पे. जो एक्शन पहले स्टार्ट हुई, राइट, एंड इट वाज गोइंग ऑन अंटिल द मोमेंट द सेकंड एक्शन टुक प्लेस, मतलब पहली एक्शन काफ़ी देर से चल रही थी और जब दूसरी एक्शन हुई एट दैट मोमेंट पहली एक्शन ख़त्म हुई. ठीक है, एट दैट मोमेंट व्हेन द सेकंड एक्शन टुक प्लेस, at that time the first action got completed. If you see the sentence over here students, when Carter reached home his servant had been waiting for 2 hours. So ये जो है his servant had been waiting for 2 hours, that means Carter का जो servant था वो कितनी देर से राह देख रहा था? 2 घंटे से, right. And that action was continued when the second action took place. कौन सी सेकेंड एक्शन हुई पास्ट में? जब कार्टर घर पहुंचा तब, मतलब जब कार्टर पहुंचा घर पर तब जाके वो पहली एक्शन जो कब से चल रही थी वो ख़त्म हो गई, राइट, एट दैट मोमेंट. क्योंकि वो कार्टर की राह देख रहा था, तो जैसे ही कार्टर आया तो जो उसकी जो पहली एक्शन थी, राइट, वेटिंग की, वो उस मोमेंट पे ख़त्म हुई. सो दैट विल कम एज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, so in that sentence the specific moment in past is when Carter reached home. लेकिन ongoing action कौन सी थी?
is that of a servant waiting, which started before Carter reached home and continued even when he reached home. मतलब उस वक्त चल ही रही थी, जब वो पहुंचा उसके बाद वो ख़त्म हुई, राइट. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं हैड. देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू ऐड बीन, एंड देन योर वर्ब हैज़ टू बी इन ing फॉर्म, राइट. मतलब पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है. और हम हैड यूज़ करेंगे, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, हम हैड ही यूज़ करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विथ प्रेजेंट perfect continuous and past perfect continuous. And the exercises over here, I have already sent you the PDF for exercise 2 and 3. So please revise those exercises again, and if you have any doubt, please let me know on my personal number. I will clear your doubts. Thank you.